our top focus this hour is the death, the murder of a Haryana police DSP, Surendra Bishnoi, who was on a surprise inspection at a site where it was suspected that illegal sand mining is taking place, and there he was mowed down by a truck. We are getting breaking inputs on that story. Take a look. All right, the big update that we are getting for you is that an encounter has taken place, and it's believed that the driver who was driving that dumper that mowed down the DSP has been shot at. This is the latest that we are getting for you. The details are emerging that a person named Ikkar has been shot and he has sustained injuries and has been taken into custody. It's believed that he is one of the accused and is said to be involved in the case of mowing down the DSP. For more on this, I am joined by Aishwarya on the broadcast. Aishwarya, thank you for joining us. The latest update that we are getting is that the dumper driver has been shot at. What is the latest that you can share with us? Well, certainly the Haryana police is on the action mode as far as nabbing of these dumper drivers are concerned who crashed the DSP after he tried to stop them while they were illegally taking these stones from the mining site at Panchgaon village. And now, certainly after the strict instructions by Chief Minister Manohar Lal Khattar of Haryana, there have been teams which was deployed earlier to nab them, but certainly after almost 4 to 5 hours of search, one of the dumper driver was shot at his leg, and later on he has been taken to the nearest civil hospital here in the very same district for further medical examination, and he has been under the custody. Still, we have been told by the official police sources that two of the other people who was involved and was in that particular dumper still on the run, and police is trying to nab them as well. The police is already on a move for questioning the family members of these dumper driver and the others as well, and also the investigation is currently taking place as far as whether it's the bigger conspiracy, a bigger syndicate which is involved in this entire illegal mining or not. So certainly all aspects are being covered, but big breaking news as far as the nabbing of one of the accused is concerned. The illegal one of the driver of the dumper have been taken into custody after he was shot at on his leg. All right, Aishwarya, thank you for joining us. Let's tell our viewers how this entire episode unfolded. Now, DSP of Haryana's Mewat area, Surinder Singh Bishnoi, 59-year-old DSP, was killed in line of duty when he was probing illegal mining. He had gone for a surprise inspection. He was mowed down by a truck driver during this inspection. It's alleged that sand mafias in the region murdered him for cracking down on illegal mining that's highly active in the Aravali area. Now, during the crackdown, the DSP had asked the truck driver for his license, following which he was run over by the truck. मिला यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही, फिर वो अचानक चेकिंग के लिए आया और इसका टाइम में पीछे से एक डंपर आया, डंपर आकर अनलोडिंग करता हुआ इसको टक्कर मारता हुआ आगे निकल गए। सर, कितने लोग डीएसपी साहब के साथ थे उस समय? एक ड्राइवर गनमैन। क्या उनका कुछ नहीं, रेडर भी थे, 3 लोग हैं। अच्छा, सर जो डंपर में थे वो कितने लोग थे, कुछ पहचान हो पाई उनकी? 3-4 बता रहे अभी नहीं फोर्स लेने के लिए उनके पास शायद वक्त नहीं होगा, अचानक इसके पास सूचना होगा कोई मुखबरी का, वो फटाफट मौका के लिए रवाना हो, या अचानक घटना हुआ। सर, किसी प्रकार की कोई वेपन भी इस्तेमाल किया गया है, कोई फायरिंग वगैरह? नहीं, कोई वेपन नहीं। टेंशन वगैरह में दिखाई दी, तनाव में हमारी ड्यूटी थी इस तरह? नहीं, तनाव की कोई बात तो पुलिस में तो तनाव देखो आज के टाइम के अंदर तनाव छोटे मोटे तो तनाव तो उनमें रहने वाले थे, तनाव तो नौकरी के प्रति तो वो इतने वो थे, नौकरी कभी हाँ, और नौकरी वफादार भी थे। पर जिन्होंने कोई फैसला लिया, अंतिम विदाई कहाँ दी जाएगी, अंतिम सलामी कहाँ दी जाएगी? नहीं, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं पता, वो तो डिप्मैक में काम है जी, विदाई कहीं दो कहाँ ना दो। जैसे आप बता रहे हैं हिसार में रहना? नहीं, हम संस्कार तो आदमपुर हिसार में करे, हमारे पैतृक जगह है।
All right, for more on this, I'm joined by my colleague Manoj on the broadcast, who's reporting on this story. Manoj, अभी स्थिति क्या है? ये तो पता चल गया है कि एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें जिस शख्स पर आरोप लग रहे थे ये गाड़ी चलाने के, ट्रक चलाने के, उसको एनकाउंटर में गोली लगी है और वो अस्पताल में है। लेकिन क्या हमारे व्यूअर्स के लिए आप बता सकते हैं कि किस तरीके का इलाका है पे, क्योंकि सबको पता है कि अरावलीज में जो इलीगल सैंड माइनिंग है उसका एक माफिया जो बहुत सालों से है और कितने ही खून हुए हैं, कितने ही इनोसेंट लोगों की जान गई है। आज जो सरप्राइज इंस्पेक्शन पे सुरेंद्र बिश्नोई, डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई जो गए थे, इसके बारे में क्या ज्यादा जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए बिल्कुल, ये जो इलाका है दरअसल ये नूह डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा का, साउथ हरियाणा का एक जिला है। और जहां ये घटना हुई है ये जगह है पचगांव, और गुरुग्राम और जो नूह डिस्ट्रिक्ट है इसका बॉर्डर का इलाका है। अरावली रेंज है जो हरियाणा के करीब 4 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें गुरुग्राम भी है, भिवानी भी है, महेंद्रगढ़ भी है, रेवाड़ी भी है। और यहाँ पर लगातार इलीगल माइनिंग होती रहती है। हालांकि सरकार और पुलिस इसको डिनाई करते रहे हैं, लेकिन आज भी इलीगल माइनिंग हो रही थी। और जो डीएसपी तावड़ू है, नूह का एक डिवीजन है डिस्ट्रिक्ट का तावड़ू, उसके तावड़ू के डीएसपी थे ये सुरेंद्र सिंह। इनको जब सूचना तभी अपने पर्सनल स्टाफ के साथ जो जानकारी मिल रही है, कोई बड़ी फोर्स नहीं थी इनके साथ, सिर्फ 4 लोग थे, इनका पर्सनल स्टाफ था। और ये मौके पर पहुंचे, जब उन्होंने देखा वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है तो उन्होंने डंपर को रोका और उससे जब बातचीत की, उसका लाइसेंस मांगा। उसके बाद उस डंपर जो चालक था उसने डीएसपी को रौंदते हुए वो आगे भाग गया और उसके बाद मौके पर ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। उसके बाद लगातार से जो डंपर चालक है उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई थी। और अभी जो सूचना मिल रही है कि एक बाकायदा मुठभेड़ हुई है आरोपियों के बीच में और पुलिस के बीच में। इसमें इकरार नाम का एक जो शख्स है, एक्सचेंज ऑफ फायरिंग में एक गोली उसको भी लगी है और उसको पकड़ लिया गया है। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इकरार मुख्य आरोपी नहीं है, वो डंपर का क्लीनर है, ड्राइवर नहीं है। डंपर कोई और चला रहा था, उसकी तलाश में पुलिस अभी लगी हुई है। अनिल विज जो कि गृह मंत्री, उन्होंने बाकायदा कह दिया चाहे आसपास के जिलों की पुलिस लगानी पड़े, लेकिन आरोपी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। तो कई टीमें इस वक्त हरियाणा पुलिस की अलग अलग जगहों पर रेड कर रही हैं और जो ड्राइवर है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पहली सफलता हरियाणा पुलिस के हाथ लग चुकी है। जी मनोज, एक और आपसे बात जानना चाहूंगी मैं। ये तो घटनाक्रम हुआ, लेकिन इसके जो मेन जो हेडलाइन है स्टोरी में वो ये है कि जो डीएसपी थे सुरेंद्र बिश्नोई, वो 4 महीने के बाद शायद रिटायर होने वाले थे और उनको एक टिप ऑफ मिला था, उनको एक जानकारी मिली थी और फिर भी वो अपनी ड्यूटी करने के लिए गए। बहुत दर्शाता है कि कितने सिंसियर थे वो अपने काम में, और 4 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। उनके परिवार के लिए, उनके सहकर्मियों के लिए बहुत बड़ा धक्का है ये, इस तरीके से जाना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए सुरेंद्र सिंह बिश्नोई मूल रूप से हिसार जिला है हरियाणा का, यहाँ आदमपुर में एक सारंगपुर गांव है, वहां के रहने वाले थे। और इसी साल 4 महीने बाद 31 अक्टूबर को उनकी रिटायरमेंट थी। वो 59 साल के हो चुके थे और 31 अक्टूबर को उनको रिटायर होना था सर्विस से। और कई जिलों में हरियाणा के वो रहे हैं, सर्विस की है। उनका परिवार यहाँ कुरुक्षेत्र जिले में भी रहता है, लेकिन मूल रूप से वो हिसार के रहने वाले थे। तो बड़ा सदमा है, 4 महीने पहले ही उनके पिता की भी मौत हुई है, उनका देहांत हुआ था, तो बड़े सदमे से गुजर रहे थे और अचानक परिवार पे ये विपत्ति आ पड़ी है। हरियाणा सरकार ने शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया है। 1 करोड़ रुपया उनको धनराशि भी दी जाएगी और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान हरियाणा सरकार ने किया है। फिलहाल जो उनकी फैमिली है वो नूह पहुंच चुकी है, जो वहां पर हॉस्पिटल है जहां बॉडी को रखा गया है, और बॉडी को लेकर रात में ही हिसार ले जाया जाएगा उनके पैतृक गांव में और सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जो ये घटना हुई है इससे कहीं ना कहीं पुलिस का भी मनोबल टूटता है, क्योंकि एक डीएसपी रैंक का इतना बड़ा अफसर जिसका इतना लंबा चौड़ा अनुभव हो, उसकी इस तरह हत्या कर दी जाए तो इससे जाता है कि जो खनन माफिया है वो बेलगाम हो चुका है, बेखौफ हो चुका है, उसे कानून का डर नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, हरियाणा के जो खनन मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि
ऐसी घटनाएं पहले होती रही हैं और जो ये लोग करते हैं खनन माफिया, कई बार तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी, जब वो वहां जाते हैं निरीक्षण के लिए, उनके ऊपर पथराव किया है, हमला किया है। यानी कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो फिर जब ऐसा पता है सरकार को कि इस प्रकार से ये लोग पथराव कर देते हैं, हमला कर देते हैं, आज तो डंपर ही चला दिया, गोली चला सकते हैं, तो फिर उस तैयारी के साथ क्यों नहीं पुलिस को रखा गया और उतनी बड़ी फोर्स क्यों नहीं ताबड़ू में दी गई? ताबड़ू जहां की अरावली एरिया है, जहां पे माइनिंग होती है और इलीगल माइनिंग की घटनाएं पहली बार नहीं, ऐसी लगातार घटनाएं होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार पर भी उठते हैं। जी जी, बहुत अहम पॉइंट उठाया आपने कि सरकार को पता है जब ऐसे वाक्य होते रहते तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और इसी बात के लिए लेट्स टेल आवर व्यूअर्स द काइंड ऑफ रिएक्शंस, लेट्स शो देम द काइंड ऑफ रिएक्शंस, द पॉलिटिकल रिएक्शंस दैट हैव कम so far. The government, the Haryana government, has assured a thorough probe in this matter, and it is said that the DSP, the late DSP, will be conferred with the status of a martyr, and a compensation of 1 crore rupees will be given to his family. Let's take a look at the reactions that are pouring in. मेवात में बेखौफ माइनिंग माफिया ने एक डीएसपी को कुचलकर मार दिया है। इस पूरी घटना से पूरा प्रदेश सख्ते में है और तमाम सवाल हरियाणा पुलिस पर, माइनिंग डिपार्टमेंट पर उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हुड्डा साहब, एक डीएसपी की मौत खनन माफिया द्वारा, कैसे देखा? बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। वो इतनी दुखद घटना है। ये एक ड्यूटी पर तैनात डीएसपी को जिस प्रकार से मर्डर किया गया, ऐसा प्रतीत होता है प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही कोई नहीं है। फ्री फॉर ऑल हो रहा है, जो मर्जी करो। खनन मंत्री कह रहे हैं कि हमें पता था ऐसी घटनाएं होती रहती है, उनको रोकने ही इसलिए ये वहां पर डीएसपी गए थे। तो घटना होती रहे, पता था तो फिर करेक्टिव स्टेप लेने चाहिए थे। ये देखिए, प्रदेश में जो माइनिंग माफिया है, या तो बेकाबू है इनसे या संरक्षण प्राप्त है। हमने देखा सदन में भी आपने कई बार इस सवाल को उठाया है। सरकार कहती है कि अब तो इलीगल माइनिंग हो ही नहीं रही कहीं से, चाहे यमुनानगर हो चाहे अरावली की पहाड़ियां हो। फिर ये क्यों हो रहा है? मैं तो खुद डाटा में देख के आया और मैंने सब उदाहरण दिए वहां जिस प्रकार की इलीगल माइनिंग हो रही। कौन लोग हैं सर जो डरते नहीं है सरकार से? आप भी मुख्यमंत्री रहे, कैसे इस पर नकेल कसने में कहां सरकार नाकाम रही? सरकार का ऐसा है, सरकार ऐसा प्रतीत होता, सरकार है ही नहीं हरियाणा में। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता रहे हैं कि हरियाणा में सरकार नहीं है, सरकार का खौफ नहीं है, इसी वजह से इस प्रकार की ये घटना सामने आई है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट यशपाल के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। जो ये इस तरह के जो मेवात का इलाका है, जो नूह जिला है, यहाँ माइनिंग कभी नहीं होती। ये माइनिंग का इलाका नहीं है। यह सेक्शन 4 और 5 है। यह सुप्रीम कोर्ट से माइनिंग बंद है। ये लोग वो हैं जो गांव के चोरी करते हैं, चोरी करके चोरी करी बेच के आते हैं। वहाँ माइनिंग माफिया नहीं कहना चाहिए इनको, ये चोर है। क्या इन्वेस्टिगेशन क्या रिवील कर रही है? क्या लगता है कि क्योंकि अब तो कुछ न कुछ सरकार के पास आया होगा पुख्ता जानकारी, कि क्या इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? नहीं, मैं जानता हूँ मेवात के नूह जिले के लोग हैं और नूह जिले के लोग पत्थर चोरी करते हैं, यहाँ से भर के जिगेजेस करते हैं। और जो लोग हैं इनके बे लाइसेंस भी होगा, ड्राइवर पर लाइसेंस भी नहीं होगा। वो का काम ही है कि जानकारी आने दीजिए, मैं सारी जानकारी करके पचगाम के लोग हैं और इनकी जानकारी ये क्या है कि चोरी करते हैं और सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। Right, to understand more about this dark underbelly of illegal mining, I'm joined by a special guest on the broadcast, Ranbir Sharma, former IG, Haryana Police. Sir, thank you so much for patiently waiting for us on this broadcast and making time for Mirror Now. This horrific incident has come to light from Haryana's Nuh, where an innocent officer lost his life in the line of duty. How rampant is illegal mining in Haryana and nearby areas? If you could help us understand better. See, ma'am, very horrified, very shocking for all of us. And so far the mining is concerned, it's a very big gang, you know. There are people from the government side, there are people from the officer side, and there are dalals, you know, mediators. They are operating all these gang in this area. I had been SP in Nuh area long back, and I have seen all these my areas of this illegal mining. Actually, first of all, my police
plus the civil administration, the mining administration, they have to work together, you know. Unless they work together as in a team wise, these people will not, we will not be able to stop it. So that is why there is a teamwork. Number two, there is a willpower. There is a strong willpower by the government that we have to stop this dacoity. They are dacoits. They are not even simple theft. They are dacoits. So these dacoit and dacoity information as well as the section has to be implemented on these people. And the gang, those who are giving them शरण, जो इनको शरण दे रहे हैं, जो इनको पैसे में हिस्सा डाल रहे हैं, उन लोगों को भी हमें अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ साथ मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा कि जो इसमें भेड़े हैं, द ब्लैक शिप्स विद इन द प्रशासन, विद इन द पुलिस प्रशासन, विद इन द गवर्नमेंट, उनको भी वी हैव टू बुक देम. We have to book them under the very strong section of the IPC, Indian Penal Code. Thirdly, we have to make a good payee in the court also. Unless we go for a good payee in the courts, either district attorney or the assistant district attorney, these people will go for a very simple section of the 379 और उनके अंदर आराम से जमानत होगी, ये लोग घर आ जाते हैं. तो हमें इस चीज को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी जरूरी है, ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी जरूरी है, स्ट्रॉन्ग धाराओं का होना जरूरी है और कोर्ट में पैरवी होनी बहुत जरूरी है. अगर ये 3-4 चीजें नहीं होती हैं तो ये इलीगल माइनिंग चलती रहेगी और पुलिस इसी तरीके से ये पुलिस को कुचलते रहेंगे. तो पुलिस को हर हालत से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए, स्ट्रॉन्ग धारा लेते हुए इनकी अकाउंटेबिलिटी हमें फिक्स करनी है और सरकार की पावर होनी जरूरी है. सरकार का इंटरफेरेंस इस काम में नहीं होना चाहिए. पुलिस को पूरी छूट दे देनी चाहिए कि इन आदमियों पे अच्छे तरीके से नकेल डालें और पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी पुलिस कार्रवाई को करें, तभी ये रुक सकता है. अदरवाइज तो ये घटनाएं, क्योंकि इनको पॉलिटिकल संरक्षण होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, इनको सरकारी ऑफिसर का संरक्षण होता है, वो भी इनकी पैरवी करते हैं. जैसे ही लोकल पुलिस को इंटरफेयर करते हैं तो साथ ही साथ इनको उसी वक्त ही हमें सख्त कानून कार्रवाई के साथ इनको आगे से रोकना. रणबीर जी, आपने बहुत जरूरी, बहुत अहम बात की है जो आपने कहा कि इनको पॉलिटिकल जो है प्रोटेक्शन मिला होता है और अभी आपने कहा कि पुलिस को छूट दे देनी चाहिए, लेकिन छूट तो लीडर्स ही देंगे ना, नेता ही देंगे, सरकार ही देगी. तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आम जो हमारे व्यूअर्स है वो ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का प्रोटेक्शन मिलता है इन इलीगल माइनिंग माफिया के लोगों को. कि अक्सर हम देखते हैं कि टीवी पर ऐसे बयान आते हैं कि हम एक्शन लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, ये शहीद हैं, ये हमारे लिए जो जवान या जो ऑफिसर गए हैं वो उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए. लेकिन ये सिस्टम है, सरकार दर सरकार, सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन माइनिंग माफिया वही है, वो और ज़्यादा से ज़्यादा और उनको ताकत मिलती जा रही है, वो और पावरफुल होते जा रहे हैं. तो किस प्रकार का सपोर्ट जो है इस माइनिंग माफिया को मिलता रहा है सरकारों द्वारा, अगर इस बात पर आप थोड़ी रोशनी डाल पाए. मैं इसी पे रोशनी डाल रहा मैम कि सबसे पहले जो सरकार के टाउट जिसे हम बोलते हैं, वो टाउट इनको संरक्षण देते हैं कि तुम जो काम करना है, गैर कानूनी काम करिए, हम आपकी रक्षा करेंगे. जैसे ये लोग कहीं लोकल थाने में पकड़े जाते हैं तो फौरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहां हो जाता है और वो दलाल इनको छुड़ा लेते हैं. अगर पुलिस ऑफिसर नहीं छोड़ता है तो उसका रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है. मैंने इसलिए बार बार कहा कि जो जब तक पॉलिटिकल विंग सीएम के आंख के इशारे से जिला चलते हैं और डीसीएसपी काम करते हैं, अगर सीएम की ये इच्छा है या पॉलिटिकल सरकार की ये इच्छा है कि ये गैर कानूनी काम नहीं होगा तो ये 24 घंटे में रुक जाएगा, क्योंकि वो दलालों को सिस्टम पता चलता है कि सरकार सख्त हो गई है और पुलिस ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी होगी. नंबर 3, हमारा क्राइम रिकॉर्ड. हमारे क्राइम रिकॉर्ड के अंदर इन बदमाशों की पूरी लिस्ट बनी हुई है और पुलिस के पास ये अख्तियारात है कि जो बदमाश 3 बार वारदात करे तो उनको हम इनहांस की धाराओं के साथ अरेस्ट करें, उनको बैड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दें और पुलिस सर्विलेंस में उनको लें. तो ये बदमाशी रुकेगी पॉलिटिकल विल के साथ. अकेली पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती और माइनिंग डिपार्टमेंट जो इसमें मिला हुआ है, उन मुलाजिमों की, वो छोटा है चाहे बड़ा अफसर है,
उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, उनको भी डकैती, चोरी नहीं, आमतौर पे हम चोरी की सिंपल 379 की धारा में पर्चा दर्ज करते हैं, वो बेलेबल ऑफेंस है, वहां जाते उनकी जमानत हो जाती है और जो इनके संरक्षण देने वाले हैं वो 1 मिनट में वकील करके पैसे जमानत कर देते हैं। तो ये जमानत तभी बंद होगी जब हम एक्सटॉर्शन प्लस डकैती कि जब वो सरकार का एरिया है, बार बार रोकने के बाद वो वहां से लूट रहे हैं, वो चाहे पत्थर हो चाहे माइनिंग हो, वो उससे पैसे तो कमा रहे हैं ना, ये लूट की धाराएं हैं, ये लूट रहे हैं, चोरी नहीं है, ये एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, बलपूर्वक वहां से छीन रहे हैं। तो इनके ऊपर एक्सटॉर्शन की धारा जो नॉन बेलेबल है और उनमें 10 साल की सजा है। और नंबर 2 मैंने बताया क्राइम रिकॉर्ड कि इनको बीसी बनाया जाए, बैड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दिया जाए। नंबर 3 पुलिस की सर्वेलेंस डाली जाए जिससे कि ये हिम्मत ना कर सके कि भी सख्त धाराएं हैं, पैरवी के अंदर इनकी जमानत नहीं होगी और जो दलाल हैं उनको भी 120 धारा 120 कॉन्स्पिरेंसी की धारा में उनको भी साथ लिया जाए, तब ये मामला। ओके सर, बस एक आखिरी सवाल और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप छोटा सा जवाब दे पाए। एक ये पुलिस अफसर के प्रिज्म से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपको पता है कि इस प्रकार का प्रेशर है नेताओं पर और एक उनका खुद ही मिली भगत है, तो जो एक पुलिस अफसर या कोई भी सिपाही जब वो ड्यूटी पे जाता है और अपनी जान को जोखिम में डाल के जाता है तो उनके मनोबल पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि आज जो हमने देखा वो शायद इसी का नतीजा था। तो एक पुलिस वाले के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ऐसी स्थिति में काम करना, इतनी खतरनाक सर्कमस्टांसेस में काम करना? पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र सिंह, इन्होंने मेरे साथ काम किया है। अच्छा। मेरा जूनियर ऑफिसर रहा है और ये पुलिस ऑफिसर बहुत ही ईमानदार पुलिस अफसरों में से एक है जो अपनी ड्यूटी बाउंड है। देखिए ना, उसके 4 महीने बाकी और फिर भी ये इसको इतना मिलते ही खुद अकेला रेड के लिए निकल गया, दूसरे एसएचओ तब तक पहुंचते इससे पहले उसने वहां रेड करनी शुरू कर दी। तो जो मनोबल की बात है, मनोबल नेचुरली अगर पॉलिटिकल आदमी इंटरफेरेंस करते हैं, पॉलिटिकल आदमी इन दुष्टों को शरण देते हैं तो उनका मनोबल डाउन होता है। इनके मनोबल को ऊपर करने के लिए हमें पुलिस अफसरों को खुली छूट देनी पड़ेगी इन बदमाशों को पकड़ने के लिए। अभी देखिए पुलिस को थोड़ी सी छूट मिली, उन्होंने 1 मिनट में 4 घंटे के अंदर अंदर उस बदमाश को घेर लाए हैं, बाकी बदमाश भी रात तक आ गए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मिरर नाउ। वी रियली होप that something eventually happens as far as this dark underbelly of illegal sand mafia is concerned. This is the big story that we are tracking on Mirror Now.